Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video because we are going to talk about JBARC complete details. Now in case you have decided that you want to become an architect in future, obviously you would want to do architecture from the top institutions in India, and in order to get into top institutions in India, you need to crack the architecture entrance examinations. You need to prepare for that and you need to score really good or top scores in the architecture entrance exams, right? So in India, there are two architecture entrance examinations through which you can get into the top institutions and complete your Bachelor's of Architecture degree. So the two entrance examinations are NATA and JEE Paper 2 or JBARC. JEE Paper 2 and JBARC is the same thing. There is no difference in that. Now for NATA examination, I have already made a video on the complete details. So if you want to check that out, you can watch that video as well after watching this video. In this video, I'm going to focus on the JBARC examination only. Through JBARC, you get colleges like SPAs and NITs. So SPA is School of Planning and Architecture and NITs are obviously National Institute of Technology. तो अगर आपको इन colleges में admission लेना है, these are government colleges in India to do architecture, so you have to crack the JBARC examination. And obviously if you want to crack the JBARC examination, you need to watch this video for the complete details. तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, because A to Z every single detail I'm going to tell you in this video. So without much introduction, let us get started. Alright guys, now let's start with the video and understand the JBARC 2025 complete details. Now even if you are appearing for the examination in 2026, this video is for you as well, because more or less the pattern and the syllabus of JBARC is going to remain the same. Last बहुत सालों से pattern और syllabus दोनों ही change नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, कुछ minor changes ही होते हैं, but more or less यही सब कुछ important है जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, चाहे आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हो या नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हो. दैट इज वाई डोंट स्किप द वीडियो एट एनी पार्ट. Every single detail that I'm going to tell you in this video is going to be important for you. Now first let's understand that what is JEE and what is JEE paper 1, what is JEE paper 2, what is the difference and all that. Okay, so JEE is joint entrance examination and JEE has two different types of papers. One is JEE paper 1 and another is JEE paper 2. Now JEE paper 1 is for the students who are engineering aspirants. अगर आपको बीटेक करना है तब आपको JEE पेपर 1 देना होता है. तो मोस्टली आपकी क्लास में आपके दोस्त होंगे जो JEE पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. तो दिस इज द एग्जाम, द JEE पेपर 1 इज द एग्जाम जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है इंडिया में. तो ऑब्वियसली अगर आपको IIT से इंजीनियरिंग करना है तो JEE पेपर 1 के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. नाउ पैरेलली JEE ऑल्सो कंडक्ट्स अनदर सेट ऑफ पेपर विच इज JEE पेपर 2 एंड इसके अंदर भी दो टाइप के पेपर होते हैं. वन इज JEE पेपर 2A एंड अनदर इज JEE पेपर 2B विच इज फॉर B प्लान. तो अगर आपको प्लानर बनना है तब आपको JEE पेपर 2B देना पड़ता है. इससे भी कुछ कॉलेजेस होते हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज एट SSAC वी डोंट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर B plan. Okay, so we are only focusing on this JEE paper 2A which is the बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर पेपर. अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर करना है इंडिया के टॉप कॉलेजेस से, तो ये वाला पेपर आपको देना पड़ता है और इसकी ही प्रिपरेशन करनी होती है ना. तो स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक एग्जामिनेशन, SSAC में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक का भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं. तो उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या वो BARC का पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. सो बेसिकली इवन इफ यू आर गिविंग द बीटेक पेपर, you can give the BARC paper also and you can give the B plan paper also. So these three are completely separate papers. इनका कोई आपस में ऐसा लिंक नहीं होता है. आप तीनों दे सकते हो और चाहो तो कोई भी दो दे सकते हो, चाहो तो कोई भी एक दे सकते हो अगर देना है तो दैट इज द थिंग अबाउट दीज थ्री पेपर्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड dates which are very very important. And obviously these are tentative dates that I'm going to tell you right now, because जो final date आती है एग्जाम्स की वो अराउंड नवंबर एंड टू दिसंबर में आती है. तो अभी के लिए
आप ये समझ सकते हो कि दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो यही प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट ईयर या और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी सेम ही होगा। ओके, सो JEE-BARC हैज़ ओनली 2 अटेम्प्ट्स, राइट। 2 आपके पास चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। जो पहला आपका अटेम्प्ट होता है वो होता है जनवरी एंड में, अराउंड 28 to 30 जनवरी एंड में, आप मान लो कोई भी डेट आ सकती है, ठीक है। एंड द सेकेंड अटेम्प्ट इज़ यूजुअली हैपनिंग इन अप्रैल, और यूजुअली ये अप्रैल स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। तो 2 आपके पास चांसेस हैं, और इन दोनों अटेम्प्ट्स में आपके पास अराउंड 1 मंथ का टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए, अराउंड 2 मंथ्स का टाइम आप मान लो, ठीक है। 2 महीने का आपके पास टाइम होता है कि अगर आप अच्छा नहीं स्कोर कर पाए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपके पास फेब एंड मार्च, दीज आर द 2 मंथ्स दैट यू हैव to upgrade your score. Okay, now let's talk about the results कि results किस तरीके से आता है, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि जेई का रिजल्ट कैसे आने वाला है, परसेंटाइल क्या होता है, और इन जनरल मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी रिजल्ट्स के बारे में। Now, you will receive your percentile after your first attempt. No rank or marks would be provided after the first attempt. This is a very important point, guys. After your first attempt examination, which is happening in January, you are not going to get any rank, okay? Because अभी आपका final rank release नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो score है वो ही final नहीं है, क्योंकि जो आपके पास 2 attempts हैं, the best of the 2 scores that you will get in the 2 attempts, that would be considered your final score, and score marks के फॉर्म में नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एप्टीट्यूड 200 मार्क्स का है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके 200 में से 145 आए हैं या 150 आए हैं, 160 आए हैं। मार्क्स आपको पता नहीं चलते हैं, ठीक है। तो पता क्या चलता है, बेसिकली परसेंटाइल रिलीज होती है, मार्क्स रिलीज नहीं होते ना। व्हाट इज परसेंटाइल? परसेंटाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज, और इसमें कंफ्यूज मत होना कि परसेंटेज और परसेंटाइल सेम होती है। परसेंटाइल इज बेसिकली अ कैलकुलेशन विच टेल्स यू दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू आर अहेड ऑफ। तो सपोज आपकी परसेंटाइल आई है अगर 99 परसेंटाइल, राइट, दिस मीन्स दैट यू आर अहेड ऑफ 99% ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव द एग्जामिनेशन। तो आप 99% बच्चों से आगे हो, बट स्टिल 1% बच्चे आपसे आगे हैं। तो अराउंड सपोज करो 1 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं JEE-BARC का, उसमें अगर आपकी परसेंटाइल 99 है, तो करीब 1000 बच्चे होंगे जो आपसे भी आगे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है परसेंटाइल का मतलब। Now, in the second attempt, again you will get your percentile, but this time along with your percentile, your final rank will also be provided कि आप ऑल इंडिया में किस रैंक पे आ रहे हो। क्योंकि सपोज आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ गए, पर सेकेंड में आपकी परसेंटाइल कम हो गई, 98 हो गई, तो फिर भी आपका फाइनल परसेंटाइल 99 ही कंसिडर होगा, और उसके हिसाब से आपकी रैंक रिलीज होगी, ठीक है। सो योर फाइनल परसेंटाइल वुड बी द बेस्ट ऑफ द 2 percentiles that you have got in both your attempts. So this is going to be a very very important thing. Now let's see some sample results from SSAC. तो ये मैंने रैंडमली 2 बच्चों का रिजल्ट डाला है। बहुत सारे रिजल्ट्स भेजते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं, बट मुझे ये दोनों रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे बिकॉज इसमें जंप बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कैसा है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये है प्लानिंग का पार्ट जो आपको देखना नहीं है, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, दिस इज ऑल द प्लानिंग पार्ट, और इसका बिल्कुल सेपरेट परसेंटाइल आता है। तो ये हमें नहीं देखना है। अगर आप देना चाहते हो प्लानिंग तो आप दे सकते हो पेपर, बट यूजुअली हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द JEE-BARC रिजल्ट दैट यू कैन सी ओवर हियर। नाउ आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ड्राइंग, ठीक है, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ड्राइंग। नाउ इन सेशन 1 you will get separate percentiles of maths, aptitude and drawing. For example, अगर हम इस पहले रिजल्ट को देखें तो मैथमेटिक्स में 21 percentile है, which is that you are only ahead of 21% of the students who have given the exam. Rest all are ahead of you. Okay, so 21 is a very low score.
मतलब हो सकता है इसमें माइनस में मार्किंग, हो नहीं सकता, है ही, इसमें माइनस में मार्क्स हैं। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो जीरो छोड़ो, जीरो से भी कम है, माइनस में मार्क्स अगर होते हैं तब इतना लो परसेंटाइल आता है। ठीक है, एप्टीट्यूड में 61 है विच इज़ अगेन वेरी लो, एंड ड्राइंग में 96 है विच इज़ गुड। तो अब क्या करना होता है कि आपके पास जो 2 महीने का टाइम होता है, बहुत बच्चे उसमें ज्वाइन करते हैं, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है बिकॉज बोर्ड्स भी होता है अप्रैल में, तो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई आई विल रिकमेंड यू दैट इफ़ यू वांट टू जॉइन, प्लीज़ जॉइन नाउ, नाउ इज़ द टाइम टू जॉइन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अदरवाइज एट द वेरी एंड मोमेंट इट बिकम्स वेरी हेक्टिक और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप आराम से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अच्छा ला सकते हो, बिकॉज देखो फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है ना, स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट एग्जामिनेशन बिकॉज everybody thinks that okay, we have another attempt also, so we will do good in that. So not everybody is prepared in the first attempt, but even like if you are doing your preparation from now consistently, okay, I'm not even telling you कि पूरा अपना 5-6 घंटा दो, बस 1-2 घंटा कंसिस्टेंटली अभी से लेके जान तक दे दो, you are going to score good marks, top marks in the first attempt itself, because थोड़ा competition कम होता है फर्स्ट में। ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। एज यू कैन सी ओवर हियर फ्रॉम 21 she jumped to 85 percentile, which is very high for BARC examination because lot of BTech students also give this exam, तो उनका मैथ्स में अच्छा रहता है। That is why all the BARC students usually they score a little bit less. That 80 plus is like a very good score for the BARC students. Okay, now for aptitude she has got 93 and for drawing she's got 99. So as you can see, so much of jump is there, and she's got, in the first attempt her final percentile was 81. Okay, in the second attempt her final percentile came to 99.15 with 517 rank all over India. तो इस तरीके से आता है, और ये रैंक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ये आपका फाइनल आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि फाइनल बेस्ड ऑन द 2 है ना, तो मतलब ये वाला जो है उन्होंने फाइनल कंसिडर किया है स्कोर। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि मान लो कि अगर हमारा जैसे देखो आप, जैसे इसमें तो वैसे दिख नहीं रहा है ऐसा, बट मान लो कि आपके एप्टीट्यूड में 99 आए होते फर्स्ट में और बाद में अगर कम हो जाते, ठीक है, तो देखो ओवरऑल ही मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज है ये। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ये नहीं होता है, बिकॉज सपोज दैट इन मैथमेटिक्स अगर आपके पहले ज़्यादा थे और बाद में कम थे, लेकिन बाकी दोनों में बाद में ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में पहले में ज़्यादा थे तो वो ज़्यादा ही लॉक हो गया, ये पूरा फाइनल ही कंसिडर होता है। मतलब मेन चीज़ जो हमें देखनी है इन द रिजल्ट, दैट इज गोइंग टू बी दिस फाइनल परसेंटाइल जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में एज यू कैन सी इट वाज 59 एंड देन इट केम टू 99.72 एंड देन द ऑल ओवर इंडिया रैंक इज 226। ओके, सो ये फाइनल होता है कि चलो सेकेंड अटेम्प्ट में 99.72 आए तो 99.72 ही है आपका फाइनल परसेंटाइल। ओके, एंड देन उसके हिसाब से आपकी रैंक आएगी। सो दिस इज हाउ योर रिजल्ट इज गोइंग टू कम। नाउ आई होप दैट द रिजल्ट्स आर क्लियर कि रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं। तो मतलब आपको देखो तीनों में ही अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी in mathematics from 14 it became 88, in aptitude also from 83 it became 99, and in drawing also from 55 it became 91. okay, so आपको हर में ही अराउंड मतलब अब मान लो 95 से ऊपर तो आपको रखना ही है एप्टीट्यूड और ड्राइंग में, और मैथ्स में 80 से ऊपर रखना है। अगर आप इतना परसेंटाइल इंडिविजुअली ले आते हो तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अंडर 1000 रैंक इज वेरी हाई, एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, बट यू हैव टू स्कोर अंडर 1000 रैंक if you want to get into your desired college. ठीक है, now let's talk about the eligibility criteria. Now there is no age limit for giving the JBAC examination. The candidates who have passed the class 12th equivalent examination 23, 24 or appearing in 2025 irrespective of their age can appear in 2025. तो basically इसमें है क्या कि age limit कुछ नहीं है, लेकिन आपने जो 12th क्लास है ना वो आपने या तो 2025 में दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका जैन में एग्ज़ाम है लेकिन आपका अप्रैल में बोर्ड्स है, देन यू आर एलिजिबल। ओके, इधर आप 24 में दे चुके हो या फिर आप 23 में दे चुके हो, मतलब लास्ट 2 साल में ही आपने दिया हो 12th का, एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हाँ बहुत कम ही लोग होते होंगे जो बहुत बाद में जाके 12th का एग्ज़ाम देते होंगे, सब लोग यूजुअली वही 17-18 की एज में देते हैं, है ना।
तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मतलब आपके पास मैक्सिमम आपके पास 2 ही साल है, ठीक है, मतलब उसके बाद तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे ना। नाउ यू शुड हैव 45% इन योर 12th बोर्ड। अगर आपके 45% नहीं है एग्रीगेट, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव, और यू आर नॉट एलिजिबल टू डू आर्किटेक्चर ओनली। जेई BARC देना तो छोड़ो, आर्किटेक्चर ही आप नहीं कर सकते हो, आपको मिनिमम चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। नाउ टू क्लियर योर कन्फ्यूजन, this year the new notice has come that chemistry is not required। तो फिजिक्स मैथ्स आपके पास होना चाहिए, केमिस्ट्री के अलावा आपके पास बायो भी हो सकता है या कोई भी और सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर चेंज है जो अभी इसी साल हुआ है, एंड ये कंटिन्यू होने वाला है इन द अपकमिंग ईयर्स, बिकॉज अभी चेंज हुआ है तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, सो this is also the most important thing regarding the eligibility. Now 45% is not going to be enough if you want to take into government colleges through JOSA counseling. I will tell you that what are the counseling or college admission procedures later in the video, but you have to understand that if you want to take into SPAs and NITs, which are the top government colleges that you get through JEE BARC examination, इन कॉलेजेस में लेने के लिए आपके 75% होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 45% होने से आप आर्किटेक्चर तो कर सकते हो, पर टॉप कॉलेजेस से नहीं कर पाओगे, स्पेशली JEE BARC क्रैक करके उससे एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो JEE BARC ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आपका देने का अगर आपके 75% नहीं है, एंड दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी पीपल। इफ़ यू आर फ्रॉम SC ST कैटेगरी देन यू शुड हैव 65। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलो कि बोर्ड्स में 45 तो छोड़ दो, वो तो बहुत बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है, एटलीस्ट आपके 75% से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है बोर्ड्स में। तो इस वजह से बोर्ड्स को इग्नोर मत करो, प्लीज़ प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन सो दैट यू आर नॉट scoring less than 75, then it will be a problem for you. Okay, now list of the qualifying examination, you can just take a screenshot because काफ़ी लोग होते हैं जो 12th boards नहीं देते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो कुछ और बोर्ड से मतलब 12th बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं बट डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर 10th के बाद कुछ और चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो ये आप एक बार देख लो, अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो JEE BARC देने के लिए, ठीक है। Now let's come to the exam pattern. The exam pattern is very important because now you will be understanding that how the questions are going to come and how the examination would be. हम उस पे आ रहे हैं थोड़ा सा। Now it will be a 3 hours paper of 400 marks with 82 questions. I will tell you that how the questions are. So it is going to be a computer based test for aptitude and maths. As you know that there are 3 subjects, aptitude, maths and drawing in JEE BARC. So ये aptitude और maths के लिए computer based होगा। computer based होगा मतलब आप center पे जाओगे, on the center you will get a PC screen. On that PC screen there will be MCQ based questions which you will have to obviously mark the correct option and then you have to give the exam on the computer itself. एक computer lab type का होता है, सबके पास PC screen होती है, उस you know it, right? Now for drawing part it will be a pen and paper test. Mainly आपको sheet provide करी जाएगी A4 size की, stationery आपको खुद लेके जाना होता है, that will not be provided to you, and then you will have to draw whatever the question is. So this is going to be for the drawing part. Now for the MCQ part, for both maths and aptitude, you will get +4 marks for each correct answer and -1 marks for each incorrect answer. Okay, so this is for both aptitude and maths. For drawing there is no negative marking obviously. Now for aptitude it is of 200 marks. ये जो 3 points है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे entire marking system बताया है। तो for aptitude it's of 200 marks, 50 questions होंगे, each of 4 marks, and obviously if you do any question wrong -1 mark would be there. For maths it is of 100 marks and मैथ्स में एक चीज़ रहती है कि 20 क्वेश्चंस तो कंपलसरी हैं 80 मार्क्स का, जो कि MCQ आएंगे, ठीक है। और जो आपके टोटल देखो, टोटल आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 25 करने हैं, ठीक है। आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं मैथ्स में, बट यू विल गेट 30 क्वेश्चंस। नाउ जो ये 20 क्वेश्चंस हैं वो तो फिक्स्ड हैं,
ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस फिक्स्ड है MCQ वाले, ये तो सबके लिए सेम ही रहता है। बट इसके अलावा भी आपको 10 और क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आप कोई भी 5 कर सकते हो। ठीक है, 10 और क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आप कोई भी 5 अटेम्प्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, एंड दीज विल बी NAQs। नाउ व्हाट इज NAQ? NAQ is numerical answer question where you are going to it's like a fill in the blank. So suppose answer है आपका 20, नंबर डिजिट 20 है, तो आपको ये टाइप करना होगा कीबोर्ड पे। ठीक है, कीबोर्ड से आपको टाइप करना होगा। सो दिस इज NAQs एंड यू हैव टू डू any 5 out of 10। तो आपको टोटल 30 मिलेंगे, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। सो दैट मीन्स यू हैव टू डू 50 क्वेश्चंस फॉर एप्टीट्यूड, यू हैव टू डू 25 क्वेश्चंस फॉर the mathematics part, and there will be 2 questions for the drawing part. So that is why there are 82 questions. Okay, now for the drawing part, it is of 100 marks. Only 2 questions will be there. Each question will be of 50 marks and it will be pen and paper. Okay, so this is understood. Students can manage 3 hours and distribute to the 3 subjects of their own choice. So suppose in some examinations, what the situation is that you have a fixed time for aptitude. Okay, in this examination, there is no fixed time subject wise. So all over you're going to get 3 hours and you can divide your time accordingly. So what usually happens is that in the aptitude part, students are usually done in like 30-40 minutes. Okay, so now the remaining time, suppose you are done with your aptitude part in 40 minutes, so the remaining 20 minutes, because if you are saying that okay 1 hour I will give for aptitude, 1 hour I will give for maths, 1 hour I will give for drawing, तो aptitude तो आपको 1 hour लगानी है ना, 20 minutes आपके बच गए, तो ये 20 minutes आप maths के लिए दे सकते हो या drawing के लिए दे सकते हो, तो up to you. Okay, so it's up to you that आपको ज़्यादा टाइम देना है drawing में, ज़्यादा टाइम देना है maths में, आप अपने हिसाब से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। टोटल आपके पास 3 आवर का है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस। Syllabus is very important and obviously I don't want to make this video too long. That is why I will give you just an overview, and if you have been watching this video at a normal speed, I will recommend you that switch it to 1.5x. थोड़ा सा ज़्यादा बेटर भी हो जाता है सुनने में, क्योंकि obviously when we speak in real life it is a little bit slow, सोच के बोलते हैं, लेकिन 1.5x पे सुनने में ठीक लगेगा। तो अगर आप चाहो तो अपनी वीडियो को थोड़ा स्पीड कर सकते हो ताकि आप कोई कुछ भी मिस भी ना करो और थोड़ी जल्दी भी देख लो सारी वीडियो को। ठीक है, now let's come to the JEE Maths part. The syllabus is the same. I'm just showing it to you on the screen. चाहो तो screenshot ले लो। 14 units होते हैं इसमें, and these are topics from your 11th and 12th grade. But obviously the JEE Maths is not going to be from NCERT level. It's not going to be that easy. तो थोड़ा सा tough रहता है। लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, JEE पेपर 1 के लेवल जैसा ही रहता है। ठीक है, तो 11th 12th का रहता है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में। बट इसमें एक चीज़ रहती है दैट यू डोंट हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली सम टॉपिक्स, एंड उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल भी आ जाता है। ठीक है, तो कम टॉपिक्स करो पर अच्छे से करके जाओ ताकि श्योर वो टॉपिक्स आप अटेम्प्ट कर पाओ और सही आंसर कर पाओ इन द एग्जामिनेशन। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 11th एंड 12th का पूरा टॉपिक है तो अब लास्ट के 5-6 मंथ्स में अब कैसे प्रिपेयर होगा, हो जाता है। बिकॉज एक्चुअली में चाहे आप 1 ईयर की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 2 ईयर की भी कर रहे हो, आपको सारे टॉपिक्स करके नहीं जाने होते हैं, कम ही टॉपिक्स करके जाने होते हैं। दैट इज सफिशिएंट एक्चुअली, कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये था मैथ्स के बारे में। नाउ लेट्स टेक अ brief overview regarding the aptitude part also. In the aptitude part, we provide 6 books. Now, there is also a syllabus which is released by JEE people themselves, but it's a very confusing syllabus. So, I thought that I will show you the syllabus of the aptitude part from what we teach through our books only. So, for the aptitude part for JEE, we are providing 6 books. For NATA, there are 7 books for aptitude because इसमें quantitative एप्टीट्यूड भी आता है विच इज़ द बेसिक मैथ्स, जो कि जेई में नहीं आता है लेकिन नाटा में आता है। तो जेई के लिए 6 बुक्स हैं, नाटा के लिए हम लोग टोटल 7 बुक्स देते हैं एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये तो सारी बुक्स हो गई, बट इसके अलावा ये सारी चीज़ें देते हैं विच इज़ ऑनलाइन बेस्ड। तो ये हमारे ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है विच इज़ पास्ट 10 ईयर पेपर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट हम लोग बुक्स में नहीं देते हैं बिकॉज देखो एग्जाम ऑनलाइन है तो बुक में क्या करोगे मॉक टेस्ट देके, वो भी
भी बिल्कुल एग्जाम जैसा ही रहना चाहिए. तो दैट इज वाई वी हैव प्रिपेयर्ड द मॉक टेस्ट जस्ट लाइक हाउ द एग्जामिनेशन वुड बी. तो बिल्कुल MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप लैपटॉप में या PC पे दे सकते हो, फ़ोन में भी दे सकते हो एक्चुअली, तो कहीं भी किसी भी डिवाइस पे दे सकते हो. तो इट्स मोर क्लोजर टू द एग्जामिनेशन. ये जितनी भी आपको बुक्स मिलती हैं उनकी आपको छोटी छोटी ई-बुक्स भी मिलती हैं, ठीक है, जिसमें आप चाहो अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है तो आप अपने डिवाइस पे भी पढ़ सकते हो. और टॉपिक एग्जामिनेशंस तो ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड रहता है. नाउ फ्रॉम दीज बुक्स ओनली आई वांट टू शो यू दैट व्हाट डू वी प्रोवाइड एंड द एंटायर कंटेंट काइंड ऑफ इंडेक्स ऑफ दीज बुक्स. ओके, फर्स्ट इज जनरल एप्टीट्यूड, जहाँ पे मैंने ऐसे टॉपिक्स डाले हैं जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं. जो लोगों को लगता है कि ये GK है, बट इट्स नॉट GK. ये बेसिकली आर्किटेक्चर से रिलेटेड है. बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं. तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं. ओके, These first 4 topics are from drawing theory, जो कि आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, कलर स्कीम्स एंड कलर साइकोलॉजी. तो ये एक जो ड्राइंग थ्योरी का टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज these are the things which develops your aesthetics, right? These topics develop your aesthetics. Later you're going to become an architect, you're going to design buildings. इन टॉपिक्स को पढ़ के ही आप सुंदर बिल्डिंग्स बना पाओगे. तो ये उस टाइप की थ्योरी होती है. कलर की साइकोलॉजी, हर कलर की अपनी साइकोलॉजी होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट रेड कलर, ऑरेंज कलर, दीज आर हंगर स्टिमुलेटिंग कलर्स. इनको देख के आपको भूख लगती है, तो आप कोई रेस्टोरेंट डिज़ाइन कर रहे हो, उसके इंटीरियर्स में आप यूज़ कर सकते हो, है ना. लेकिन अगर आप ब्लू कलर की बात करोगे तो ब्लू कलर की आपने देखा होगा कि कोई फ्रूट्स, कोई वेजिटेबल्स भी नहीं अवेलेबल होते हैं नेचुरली, आई एम सेइंग, बिकॉज इट्स अ हंगर सप्रेसेंट कलर. तो वो आपको अवॉइड करना होगा अगर आप कोई रेस्टोरेंट का इंटीरियर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो. तो इस तरीके से सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर डिज़ाइनिंग एंड फॉर बीइंग एन आर्किटेक्ट इन जनरल. तो ये आप शुरू में पढ़ते हो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो. तो ये एग्जाम में भी बहुत आता है, इन पे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, नाउ आर्किटेक्चरल टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्किटेक्चर में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो डेली लाइफ में आर्किटेक्ट्स को पता होते हैं, तो वो सब चीज़ों में से भी आ जाता है एग्जामिनेशन में. इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर्स इन आर्किटेक्चर, लास्ट ईयर ही इससे क्वेश्चन आया था कि रेविट था और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स थे. तो पूछा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं. सो जनरली दीज टॉपिक्स विल डेवलप योर knowledge on architecture and architecture course also, what architects do. तो आपको एक overview लगता है इन टॉपिक्स को पढ़ के. Now art movements, basic Indian GK से क्वेश्चन आ जाता है. famous Indian artists, famous foreign artists, golden ratio, building services, daylighting, ventilation, climatology. तो ये सारे जो लास्ट के टॉपिक्स हैं ये वाले, ये भी आर्किटेक्चर में आप पढ़ते हो. आर्किटेक्चर के कोर्स में शुरू के फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हो, थर्ड ईयर में भी पढ़ते हो. उसके बेसिक्स भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में. So we have shortlisted the topics from which the questions can come in the examination that you study in your architecture course, and we have not given it in very detail because that is not required. So a very basic overview only that is required for the examination, and all the topics are shortlisted by our team of members who are all architects, and they have shortlisted these topics, and they have also customized the books and the e-books, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही ऐसे चीज़ें हैं जो आपको समझने में भी ईजी रहेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, और एग्जामिनेशन में भी उसमें से ही आता है 100%, कुछ भी बाहर से नहीं आता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स. इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल, this entire topic is there in architecture course, and many topics, many questions come from this topic also. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम कोर्सेज में पढ़ते हैं बट इतना डिटेल में नहीं रहता है. तो आर्किटेक्ट्स ने, जो हमारी टीम है, उन्होंने इन टॉपिक्स को भी बहुत ही कंसाइज वे में बनाया है कि आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है, पर जितनी ज़रूरत है और जितनी आपको समझ आए, बिकॉज एट दिस स्टेज यू आर जस्ट स्कूल स्टूडेंट्स, सो यू आर नॉट येट एन आर्किटेक्ट और इवन आर्किटेक्चर स्टूडेंट. तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, और ऑब्वियसली आप 5 साल के कोर्स में पढ़ते हो इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में, पर नाटक की प्रिपरेशन के लिए और JBR की प्रिपरेशन के लिए आप इसको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मैनर में पढ़ते हो, ब्रीफ मैनर में पढ़ते हो, और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है. मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे बुक से नहीं आते हैं,
और वो भी 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि करंट अफेयर बेस्ड होते हैं. तो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर दोज क्वेश्चंस कैन बी डन थ्रू रीडिंग न्यूज़पेपर्स, और बाकी कुछ भी बाहर से नहीं आता है. दैट इज़ वाई most of the students who prepare with us end up scoring top scores, end up getting into SPAs and NITs. SPAs और NITs में अभी अगर हम बात करें इस साल जो एडमिशन्स हुए हैं, 42 students got into SPAs and NITs and we prepared only around 159 students. Okay, so that is a very high number. और मतलब ये भी जो 159 है सारे तो क्लास में आते भी नहीं है, राइट. तो मान लो अगर 60-70 स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे हैं, उसमें से इतने का तो हो ही जाता है इजीली. तो इट इज़ 100% श्योर शॉट कि इससे ज़्यादा और इससे कम आपको नहीं पढ़ना है. ये बिल्कुल ही परफेक्ट सिलेबस रहता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स. नाउ बहुत सारे फेमस बिल्डिंग्स और बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं वर्ल्ड में, पर आपको कौन से पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं वो भी आपको पता चलेगा थ्रू आवर बुक्स. सो वी हैव गिवन ऑल द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स दैट एज आर्किटेक्ट्स वी नो दैट दीज बिल्डिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव रेड अबाउट इट इन आवर 5-year कोर्स. तो ये हम वही बिल्डिंग्स देते हैं और वही आर्किटेक्ट्स देते हैं. क्वेश्चंस भी हमेशा इन्हीं में से आते हैं. Now 2D 3D visualization, if you talk about, so in 2D 3D visualization we are giving tests via in the book, क्योंकि ये जो questions हैं ये ज़्यादातर practice based होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टॉपिक, ये जो टॉपिक है इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में. तो आप मान के चलो कि 80 मार्क्स के अराउंड का अकेला 2D 3D विजुअलाइजेशन में से ही क्वेश्चन आता है. तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट दैट आर्किटेक्ट्स विल एक्सप्लेन यू इन द क्लासेस एंड देन यू कैन प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स थ्रू आवर बुक्स. Now, next is the reasoning part. In the reasoning part, there is verbal and non-verbal reasoning, which is again, first you have to understand the tricks to do that, the tips to do that, and the basic things, basic you can say, जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसको आप फास्ट वे में कैसे कर पाओगे, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, that you will study in the classes and then you can practice it through our book of reasoning. And then we have history of architecture again, which is a very huge topic, but again in this also we have concised it and made it in a very precise manner that is suitable for you to cover everything. and history में से भी कुछ बाहर से नहीं आएगा, जो हमने दिया है वो more than enough ही है. ठीक है, इतना भी बहुत ही ज़्यादा है ये. तो बहुत ऐसा नहीं है कि इतना है तो आप कर नहीं पाओगे. स्टूडेंट्स जो एक बार में लग के करते हैं वो सारे टॉपिक्स को चाहे तो 2 महीने में भी कर सकते हैं कंप्लीट. तो ये देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही होते हैं. मान लो 5-6 पेज का एक टॉपिक होता है, तो इतना टाइम इसको करने में नहीं लगता है. Now let's talk about the drawing part. So for the drawing we provide 3 drawing books. Okay, now in these 3 drawing books we have given these 6 major टॉपिक्स ऑफ द ड्राइंग पार्ट, जिसके अगेन बाहर से कुछ नहीं आता है, ना तो नाटा में ना तो जेई में. पहला है ह्यूमन फिगर्स एंड पोर्ट्रेट्स, देन पर्सपेक्टिव एंड 3D कॉम्पोजिशन, 2D कॉम्पोजिशन एंड लोगो डिजाइनिंग. नाउ इन दिस वीडियो, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द JEE BAC एग्जामिनेशन, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू द एंटायर सिलेबस in detail. I'm just explaining you the basic topics that you need to do that will allow you to understand that what the syllabus is in an overview manner, in a brief manner. But in the upcoming videos I will give you a very detailed understanding and idea of the syllabus, जिसमें मैं आपको questions भी दिखाऊंगी किस टाइप के questions आते हैं, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से prepare करवाते हैं, हमारे e-books कैसे दिखते हैं, हमारे books कैसे दिखते हैं. So if you want to see that video of complete detailed syllabus explanation, you can comment down below and I will make that video very very soon. But in this video I'm not covering it in very very much detail. Okay, now let's talk about how to prepare and how you can start with your preparation. So I will suggest you that if you want to prepare for the JEE examination, do not try to completely self prepare. Now it's not like that ki you can't self prepare. Some students can, but the chances are very rare, because there are a lot of things that you don't know, that how you will
be able to prepare that topic, and what are the important topics, what are not important topics, especially when you talk about the drawing part. Because for the drawing part, mostly students don't know the techniques, they don't know how to make human figures, and obviously you cannot invent the techniques, right? You have to learn it, because if you will invent the techniques yourself, it will take years and years, maybe it will take a whole lifetime. So that is why you need somebody to teach you the drawing techniques. Also through the books, it is not completely possible to prepare and understand the techniques through the books. So the live classes becomes very, very important, that somebody is there to teach you, make you understand, and through the live classes you understand everything. Now through the books you practice, prepare, and revise the things, and that makes you like that is sufficient for you to get top scores in the exam. Okay, so I'm not telling you that you straight away join SSAC. Although SSAC is a completely online platform, we do not give any offline classes, we don't have any offline centers, and there's a reason for that, because I believe personally that online preparation for architecture entrance examination is the best way of preparation. The reason is that when I was in my 12th grade, I did not enroll for a coaching. Although I had in my mind that I want to give NATA JEE, but I couldn't enroll in a coaching because of the time constraint. I used to go to the school, then I had to come and attend the tuition. So I did not have the time to go to another offline coaching, and that would really be very hectic for me. But in the online coaching, you just have to sit in front of the laptop between 8 p.m. to 10 p.m. at night, which is a very comfortable time. In that time, you are usually not having your tuitions also, there is no school, and because you are at the home, so you are at a very comfortable and safe space, so you don't need to worry about that कि बाहर जाना है रात में निकल के, उस टाइम में कोई सोता भी नहीं है, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है क्लासेस अटेंड करना. और 1-2 घंटे के लिए अगर आप डेली क्लासेस अटेंड करते हो तो आपके 100% चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन क्रैक करने के, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया यू विल गेट द बेस्ट टीचर्स एट SSAC. We all are mostly architects, and there are some faculty members for reasoning and mathematics. Specifically for fine arts also, we have fine arts teacher for the drawing, but for the drawing architects will also take the class. तो mostly 80% हमारी टीम में architects ही हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपको बेस्ट टीचर्स मिलते हैं पूरे इंडिया में. तो दैट इज़ वाई योर चांसेस इट्स लिटरली 100%. एंड अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लो तो वो गलत होगा, बिकॉज मैं ये आपको बोल ही नहीं रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट यू अटेंड अ फ्री डेमो क्लास. ओके, एंड डेमो क्लासेस वी गिव इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 days, जिसमें हम एप्टीट्यूड का एक दिन क्लास लेते हैं और एक दिन ड्राइंग का भी लेते हैं. तो आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से आपको एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से आपको ड्राइंग की प्रिपरेशन करनी है. एंड इफ़ यू फील कंफर्टेबल इन the classes, if you feel that you're able to understand and you are comfortable in the online classes, आपको फ़ायदा होगा, then you can think about joining. So I will recommend you that please go and book a free demo class for yourself and just see once, because कहीं भी आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे कौन फैकल्टी है क्या है, बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पे आपके 100% चांसेस नहीं होने वाले हैं, बिकॉज मैंने भी कोचिंग करा है और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था. और यूजुअली कोचिंग्स आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम पे इतना फोकस भी नहीं करती हैं, तो आपके 100% चांसेस कहीं भी नहीं होते हैं अपार्ट फ्रॉम SSAC. एंड 100% चांसेस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि देखो 100% एडमिशन्स तो हमारे भी नहीं है SPAs और NITs में, लेकिन मुझे ये पता है कि क्लासेस में जो भी बच्चे को मैंने देखा है कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हुए, जो भी बच्चा हर क्लास में आता है और मुझे पता है कि कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है बच्चा, उसका होता ही है एडमिशन. जो भी डिज़ायर्ड कॉलेज है, SPAs में हो जाता है, NITs में हो जाता है, सेप्ट में हो जाता है, वो 100% चांस रहता है, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है प्रिपरेशन. अगर आप करेक्ट गाइडेंस में और करेक्ट वे में करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है. आपके चाहे स्कूल में कम भी मार्क्स आते हो, वो मैटर ही नहीं करता है यहाँ पे, बिकॉज बिल्कुल डिफरेंट है. आप जो पढ़ोगे SSAC में, वो आपने स्कूल में कभी पढ़ा ही नहीं होगा. इट्स दैट डिफरेंट. तो ये चीज़ बहुत इजी सिंपल होती है, जो कि कोई भी कर सकता है प्रिपेयर. अगर आपको डेमो क्लास बुक करना है तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन.
You can click on book a free demo class and you can fill your details. Right in the front only you will see this option, book a free demo class option. You fill this detail and then ourselves only we will add you in one of the WhatsApp groups where the link of the demo class will come. Okay, so see you in the demo classes. Now let's move forward with the results a little bit. So these are our results for JEB for this year, and we prepared 159 students as I told you before. Out of these, 31 students got 99 percentile and 50% of the students have got 95 percentile plus of what we trained, and 44, because this is the latest news, because the admissions are just over now only, है ना. admissions काफ़ी लेट तक होता है. तो 44 students का हो चुका है SPAs और NITs में in 2024 out of 159 students that we prepared. तो आप खुद देख सकते हो कि चांसेस कितने ज़्यादा हाई हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कहीं भी किसी भी कोचिंग का मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बिकॉज ये मेरे लिए भी शॉकिंग था जब शुरू में आया था. बट अभी हमें पता है एग्जैक्टली कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाना है. तो अभी ये ग्रो ही होने वाला है, डाउन तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है. Okay, so you can book your free demo class and then you can see for yourself that why we are special and इतना अच्छा result क्यों आता है. Now let's talk about the college admission process and we will end with this video after this. I hope that ये video आपको अच्छी लग रही होगी. बहुत लंबी है I know, but मैं आपको सारी चीज़ें बताने की ट्राई कर रही हूँ जो भी मुझे आपको बतानी है. तो कॉलेज एडमिशन प्रोसेस आपका 3 तरीके का होता है through JEB ARC. One is JOSA counseling, one is state counseling, and one is direct admission. Now in JOSA counseling, what is JOSA counseling? See, it is a counseling process which is conducted by NTA only. Now what is NTA? NTA is National Testing Agency, the same agency which conducts the JEE examination. Okay, after the JEE examination is over, they do this counseling which is known as the JOSA counseling. Now when you participate in this JOSA counseling, you have to fill the preferences that मुझे 1 2 3 4 मतलब ये मेरे preferences हैं. मेरे number 1 कॉलेज जो मुझे जाना है वो है SPA दिल्ली, ठीक है. और फिर आपको अपनी रैंक के हिसाब से, सपोज आपकी रैंक है ऑल ओवर इंडिया, आपकी रैंक है 7, तो आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो इसमें आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर JEE रैंक. Now, if you don't get admission through JOSA counseling, you can participate in state counseling. Now, all the states, not all the states, many states have their own state counseling. For example, if you talk about Maharashtra state has their own state counseling. Now in this state counseling, there are all the colleges of Maharashtra, and when you participate in that, in the state counseling, then you have to fill your JEE percentile and your boards marks. Then उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है उस स्टेट में, और अगेन आपको प्रेफरेंसेस भरने होते हैं. या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो. अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज पसंद आ रहा है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनका फॉर्म भर के और डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो. तो ये तीनों तरीके होते हैं एडमिशन लेने के थ्रू JEB ARC. मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक JEE एडमिशन्स के रिलेटेड, नाटा एंड JEE आर्किटेक्चर एडमिशन के रिलेटेड डिटेल वीडियो बना रखी है. तो अगर आप चाहते हो तो आर्किटेक्चर एडमिशन के रिलेटेड वाली वीडियो भी आप देख सकते हो. सो इफ यू विल गो टू आवर चैनल, आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच सम वीडियोज दैट आई एम गोना शो यू राइट नाउ. So first is this aspirant to topper video, because in this video, this is a podcast video. It's the first podcast video that I have ever shot with one of the students of SSAC. Her name is Sanjeevni and she is in SPA Delhi. अभी उसका recently admission हुआ है. तो उसने अपनी पूरी जर्नी बताई है कि कैसे उसने प्रिपेयर किया था हमारे साथ और किस तरीके से वो अपना टाइम टेबल फॉलो करती थी, क्या क्या टिप्स ट्रिक्स हर चीज़ उसने बताई है वीडियो में. तो आई विल रिकमेंड यू दैट इफ यू आल्सो वांट टू स्कोर टॉप मार्क्स, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो विद संजीवनी. नेक्स्ट आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द नाटा 2025 syllabus video, because just like this video I have talked about NATA 2025 entire detail in this particular video. So I will recommend you to watch this. And third video that I will recommend you to watch is the architecture admission process video, because in this video I have told you that after you have got your final result of NATA and JEE, how you can take admission in the colleges. So this is also a very important video. So I will recommend you to watch these 3 important videos. Rest is up to you. आपको जितनी वीडियो देखनी आप देख सकते हो, पर ये 3 वीडियो मैं आपको recommend कर रही हूँ कि आप प्लीज़ जाके देखना ज़रूर.
अब लास्ट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जोसा सीट एलोकेशन अथॉरिटी के बारे में। तो इसका भी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इससे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना आप ये खुद भी चेक कर सकते हो कि सपोज़ आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है थ्रू जोसा, तो जैसे आप देख सकते हो कि हम अगर मान लो SPA दिल्ली विच इज़ द बेस्ट कॉलेज थ्रू जोसा, अगर आपको SPA दिल्ली में एडमिशन लेना है, ठीक है, और आपको अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, ऑल इंडिया जेंडर न्यूट्रल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 इज़ द रैंक from where like all India rank 3 student got admission in SPA Delhi and all India rank 238 student, और ये जो 238 रैंक है ना, ये संजीवनी की रैंक है। तो संजीवनी की रैंक 238 थी जिस पे क्लोज हुआ था, तो उसको बिल्कुल क्लोजिंग रैंक पे ही मिला है SPA दिल्ली में एडमिशन, तो ज़रूर जाके देखना। तो ये है रैंक की, अगर आपकी 238 रैंक है तभी आपको SPA दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है, और ये इस साल का है, हर साल का थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी 190 भी हो सकता है, कभी 250 भी जा सकता है, कभी 218 हो सकता है, तो एवरी ईयर इट चेंजेस अ लिटिल बिट। बट इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू द टॉप कॉलेजेस थ्रू JEE, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू दैट टॉप कॉलेजेस कौन से हैं थ्रू JEE। तो देखो, टॉप कॉलेजेस स्टेट काउंसलिंग से नहीं मिलते, डायरेक्ट एडमिशन से नहीं मिलते। टॉप कॉलेजेस अगर आपको मिलेंगे तो आपको जोसा से मिलेंगे। तो 3 SPA जो हैं वो टॉप के हैं, SPA दिल्ली, SPA विजयवाड़ा एंड SPA भोपाल, एंड आपका 2 NIT हैं जो कि टॉप के हैं, विच इज़ NIT त्रिची एंड NIT कैरिकट। तो ये अभी के लिए आपका एम होना चाहिए, और अगर आपको इन 5 में से किसी भी कॉलेज में इजीली एडमिशन अगर चाहिए, तो फिर कम से कम जो आपकी रैंक है वो आपकी अंडर 1000 होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इन 5 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये अंडर 1000 रैंक आपका इजीली आ सकता है, but with preparation. Without preparation it is almost impossible. So that is why I am saying you that website पे जाओ, बुक फ्री डेमो क्लास करो, और फिर हम और भी ज़्यादा बात करेंगे। जो डेमो क्लास है वो होती रहती हैं, हर 1-2 हफ्ते में हम रखते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना। जो भी डेट है डेमो क्लास की वो आपको पता चल जाएगी। तो डेमो क्लास अगर आप देखोगे तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो डेमो क्लास में, और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में, बिकॉज वीडियो तो बहुत छोटी होती है, पर डेमो क्लास 1-1.5 घंटे की होती है, तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग नाटा, रिगार्डिंग JEE, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग these exams becomes clear to you. So that is why I will recommend you that come and meet me in the demo classes. तब तक के लिए बाय गाइस। मैंने जो आपको वीडियोस बोली वो ज़रूर देखना, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय एवरीवन।